Okay, so I have come with a new topic. The name of the topic is life cycle costing. Sometimes it is also called product life cycle costing. So देखते हैं इसमें क्या है. अगर आप लोगों ने मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या फिर मार्केटिंग की किताब पढ़ी है, कोई भी फिलिप कोटलर की या किसी की भी किताब पर मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही पॉपुलर है. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और द फेजेस ऑफ ए प्रोडक्ट सिमिलर है उसमें से. बहुत सारी चीज़ें उसको हमको समझना है और कुछ नहीं. ओके. So when we talk about the costing, one thing we need to remember is that we are basically talking about the manufacturing unit. If you listen to my previous videos where I have discussed about when we deal with the cost, we always have to presume that we are running a manufacturing unit. Manufacturing unit है इसका मतलब इसमें खर्चा है. ओके okay. अगर हम प्रोडक्ट एक बना रहे हैं, so what are the stages in case of a manufacturing unit will be there. First will be pre-manufacturing. Second will be manufacturing. Sorry, it has some problem. Manufacturing. Manufacturing, then post-manufacturing. Pre-manufacturing, manufacturing, and post-manufacturing. In pre-manufacturing phase, what are the cost will incur? The main important cost will be the research and development. Then it can be the planning, or it can be the design, and mainly engineering cost. I mean, product कैसे बना रहे हो लोग, खर्चा कर रहे हैं, those things etc. In manufacturing phases, we all know three types of cost are very important. One is the material, second is the labor, and third one is the overhead cost. Overhead cost is divided into variable cost and it can be the fixed cost. Okay, post में क्या होगा? In post mainly the after sales services, then warranty, guarantee. These are the stages by which a product passes through, and these are the costs which are involved. So product बनाने में ये सारे cost involved हो सकते हैं, mainly cost, alternative cost, attribute cost और भी ज़्यादा होंगे. Then what we basically do in life cycle costing, we basically trace the cost. Okay, do we trace only the cost? No, we trace the cost along with the revenue of the product over its useful life. So we are basically concerned about tracing the cost and revenue of the product over its useful life. एक प्रोडक्ट जो है अपनी पूरी लाइफ में कितना खर्चा इनकट करेगा और पूरी लाइफ में वो हमें कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दे सकता है, that we basically try to understood while we deal with the life cycle costing in case of a costing. Okay, so बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की. बेसिकली कंसर्न अबाउट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बर्थ, देयर इज इंट्रोडक्शन, टिल द एंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट. ये हमको रिमेंबर रखना है, ये हमको याद रखना है हमेशा. वेरी सिंपल है. अच्छा, नाउ a product can passes through different phases. So let us see what are the phases of product. What are the phases of product? The phases of product है, you might have studied the phases of product in economics as well as in marketing. So it start like this: growth, then stable, then decline. Okay, so this is the stage where it started growing. Then come this stage. This is basically a stable stage. Then this is the end stage. Okay, so product यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इस स्टेज में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए इन द मार्केट में. सो इस स्टेज को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज. देन इट कम्स द ग्रोथ स्टेज.
ग्रोथ मतलब प्रोडक्ट्स बिकम वेरी पॉपुलर इन द मार्केट, डिमांड है प्रोडक्ट का मार्केट में, तो इसमें ग्रोथ होगा. देन ए प्रोडक्ट माइट बिकम very popular in the market and is in a position to increase its शेयर. मार्केट शेयर बढ़ा रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट मेच्योर हो गया है. सो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे, इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे मेच्योरिटी स्टेज. तो द लास्ट स्टेज इज द डिक्लाइन स्टेज. डिक्लाइन स्टेज मतलब वो स्टेज जिसमें प्रोडक्ट अपने डिमांड, मार्केट में जो उसका डिमांड है बड़ा ही कम हो गया है, लोग उसको डिमांड नहीं कर रहे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, नो वन थिंकिंग अबाउट रीलॉन्चिंग एक्सेट्रा. सो एवरीथिंग इज very low. If I give an example of the product is very popular, it is Nokia. Think about Nokia when it is introduced in the early 2000s, I mean early, late 90s or at the millennium etc. इंट्रोडक्शन स्टेज में तो बड़ा पॉपुलर था. when the Nokia was launched, then उसका डिमांड बढ़ा, वो ग्रोथ हुआ, उसने मार्केट शेयर भी किया. एक ज़माना था जब नोकिया का फ़ोन किसी से कम्पीट, मतलब और कोई कंपनी नोकिया के फ़ोन से कम्पीट नहीं करता. देर इज सम टू कंपनीज आई इफ आई कैन रिकॉल. One is Sony Ericsson, and another was Motorola was there in the market, but entire market, I mean most of the share in the market are captured by Nokia. Then क्या हुआ, Nokia market में decline हो गया. There may be certain reasons there. We are not going in detail what exactly is the reason, but a product basically passes through these 4 different stages. That is called the phases of the product: introduction, growth, maturity, and decline. Now the question come, हर एक प्रोडक्ट क्या इन चारों फेज से गुजरता है या फिर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फेजेस है? The answer is yes. If you are manufacturing and hairpin will passes to these 4 stages: introduction, growth, maturity, decline. As you compare this with the aeroplane, if you're preparing an aeroplane also, aeroplane will also passes to this introduction, growth, maturity, decline. You take the example of Boeing. Now Boeing is competing with Airbus दुनिया की सबसे बड़ी एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. उसके साथ Boeing अभी तक डिक्लाइन स्टेज में नहीं आया है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द डिक्लाइनिंग स्टेज. वी माइट सी इन कमिंग फ्यूचर के बोइंग प्लेन्स जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में आ सकता है. सो उसका कॉस्ट निकालना बड़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. कौन सा स्टेज में कॉस्ट कैसे निकलता है, कौन सा स्टेज में एक प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट करता है, what are the parameters they are based on which we have to calculate the cost. Let us see. Let us consider these 4 different stages. तो यहाँ तक समझ में आया? There are 4 different phases of a product. One is introduction, growth, maturity, and decline. Okay, so let us see. There are 4 phases of the product. One is introduction, growth, maturity, and decline. Write this. Introduction, growth, maturity, and decline. Okay, so in introduction stage, what will be the sales? Then what will be the sales price? Different stages. और उसके बाद let's see what exactly is the competition of a product in different stages. Then see what exactly is the profit. Then say customer knowledge. Then last you say product complexity. See, these are the parameters based on which we will try to identify the behavior in a product, the cost which is involved in a product. So let us quickly see. If a product is launched in the market in introduction stage, its sales will be high or low? Its sales will be low. Why? Because it is just introduced in the market. लोगों को तो उसके बारे में पता ही नहीं है ज़्यादा. लोग न जानेंगे पहले, उसके बाद ना उसको यूज़ करेंगे अगर उनको अच्छा लगा. Sales price. Now you see, very tactical decision here. Basically, when we introduce new product in the market, if we do not have any such very highly competitive competitor in the market, we basically set our price at high. क्यों? क्योंकि हमको अपना जो कॉस्ट हम लोगों ने इनकर किया है वो इंट्रोडक्शन स्टेज भी कवर अप कर देना है, ताकि अगर बाद में हमको प्रोडक्ट बेचने में प्रॉब्लम हो तब हम प्रोडक्ट का दाम कम कर सकते हैं. बट इफ वी सेट द प्राइस एट द बिगिनिंग एट वेरी लो, अगर उसके बाद भी हम उसको कम करते देन वी विल बी नॉट इन पोजिशन टू अर्न एनी प्रॉफिट, विल बी इनकरिंग लॉस. ओके, कंपटीशन जो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा? कंपटीशन जो होगा इंट्रोडक्शन स्टेज में वेरी लो होगा या फिर लो होगा, कभी कभी रहता ही नहीं है. प्रॉफिट इन इंट्रोडक्शन स्टेज इज ऑल्सो लो, is also low. Then customer knowledge regarding the product introduction stage is low.
देन प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी इज हाई, मतलब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसका फीचर्स क्या है, कैसे ये बिहेव करता है, कैसे ये रन करता है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी जो है हाई होगा इंट्रोडक्शन स्टेज। ओके, व्हाट अबाउट द ग्रोथ स्टेज? इन ग्रोथ स्टेज योर सेल्स विल बी वेरी हाई और इट विल बी हाई एंड इट विल बी एट इंक्रीजिंग रेट। ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्ट का, लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, मे बी डिमांड बढ़ गया है, इसका ब्रांडिंग अच्छा हुआ है। सेल्स प्राइस वी व्हाट वी डू, वी बेसिकली मेंटेन द सेल प्राइस। इफ इट इज सेट एट हाई वी कीप इट एट हाई। कंपटीशन जो होगा, यस इसमें होगा थोड़ा थोड़ा कंपटीशन स्टार्ट होगा, क्योंकि कंपटीटर्स को पता चला है एक प्रोडक्ट है मार्केट में, बहुत ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट विल बी देयर, यस it will be not at high side but yes it will be there. Customer knowledge, yes it will be there at preliminary stage. Product complexity, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं सिंप्लीफाई? बिकॉज ये ग्रोथ हो रहा है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। Think about the Apple laptop or Apple phone when it introduced in the market. When people demanded that this thing should be there, front camera should be there, scanning option should be there, video recording would be there, high resolution should be there. So what they did, they simplified their product so that they can increase the product demand in the market. People should demand it. उनको भी तो अपना काम धंधा चलाना है। Then comes the maturity stage. Maturity stage में क्या होगा? Maturity stage में प्रोडक्ट जो है सेल्स तो उसका हाई होगा बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। मतलब क्या है इसका, समझ लो मेरा सेल्स हो रहा है 1.5 लाख इन 17, 1.4 लाख इन 18, 1.35 लाख इन 2009। मतलब क्या है, मेरा सेल्स तो हो रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो मेजोरिटी स्टेज में बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है अपना मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेता है कि मार्केट में उसका बड़ा नाम है, मार्केट में वो अपना हर किसी के पास मिलेगा, मार्केट शेयर उसका मार्केट में ज़्यादा है, बट उसका सेल्स क्वांटिटी जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कंपैरेटिवली लो, नॉट वेरी लो बट कंपैरेटिवली लो। सेल्स प्राइस क्या होता है, सेल्स प्राइस हम लोग मार्केट में टिके रहने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। देन व्हाट अबाउट द कंपटीशन? नाउ द कंपटीशन विल बी टाइट, कंपटीशन विल बी हाई, लोगों को पता चल गया, अब लोग एंटर करेंगे कंपटीटर्स। प्रॉफिट इज हाई साइड, यहाँ पर जो यस लिखा है इसका मतलब भी हाई है प्रॉफिट ग्रोथ स्टेज में। नॉलेज ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो हाई। अब कस्टमर को पता चल गया, अच्छा ये प्रोडक्ट है मार्केट में, ये सर्विस दे रहा है, ओके। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हम लोग स्टैंडर्डाइज बना देंगे, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है मार्केट में, ये फीचर्स है इस प्रोडक्ट में, आप आके खरीदिए, आपको ये फैसिलिटीज मिलेगा, ओके। इन डिक्लाइन स्टेज व्हाट बेसिकली हैपेंस रिलेटेड टू द सेल्स, ऑब्वियसली अगर ये स्टेज डिक्लाइन है तो सेल्स तो मेरा लो होगा। सेल्स प्राइस क्या होगा, सेल्स प्राइस भी लो होगा, मुझे लो सेट करना पड़ेगा, क्यों, मुझे मार्केट में टिकना है, मुझे मार्केट से निकलना नहीं है। कंपटीशन जो होगा वेरी हाई, क्यों भाई कंपटीशन इतना हाई क्यों है, इसकी वजह से तो ये लो है ना, मेरा सेल्स लो हो गया, कंपटीटर्स आ गए मार्केट में, मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच माई सेल्स आर वेरी लो एंड माई प्रॉफिट इज ऑल्सो वेरी लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द प्रॉफिट विल बी लो बिकॉज सेल्स इज लो। कस्टमर नॉलेज विल बी वेरी हाई रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। आप कस्टमर को इसके बारे में पता चल गया, जैसे नोकिया के साथ हुआ, नोकिया के बारे में पता चल गया, क्या पता चल गया, नोकिया को जो एंड्रॉयड का जो स्मार्ट फीचर्स है वो इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा था, फीचर्स ला नहीं पा रहा था, लोगों ने क्या किया, चलो भाई हम लोग शिफ्ट करते हैं, लेट अस मूव टू सम अदर कंपनी, सैमसंग इज देयर, देन द Xiaomi came, Realme came, then other companies came in the market and captured the Nokia market share. Then प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि आपने तो प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। So these are some of the important parameters based on which we have to set the price of the product, it is the cost of the product, depending on the stage on which, say for example अगर मैं आपसे पूछूं अभी जो मुझे कौन सा स्टेज है जिस स्टेज में प्रोडक्ट का कॉस्ट कंट्रोल सबसे ज़्यादा करना चाहिए, देन द ऑब्वियस आंसर विल बी द डिक्लाइन स्टेज में मुझे कॉस्ट कंट्रोल सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्यों, मुझे अभी टिके रहना है मार्केट में, तब मैं सेल्स के बारे में नहीं सोचूंगा, तब मैं अपने प्राइस के बारे में नहीं सोचूंगा, तब मैं अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगा, तब मैं कह सकूँगा किसी तरह भगवान मेरा कॉस्ट कवर हो जाए, उसके ऊपर अगर मिले वेरी गुड, देन आई विल थिंक समथिंग एल्स। सो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर वी बेसिकली डिसाइड अबाउट द एक्टिविटीज और कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। Okay, now let us quickly see what are the features of product life cycle costing. Short form में लिखा, a product always has a
फाइनेट लाइफ मतलब इसका एक निर्धारित लाइफ होता है प्रोडक्ट का, और डिफरेंट फेजेस में भी जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, सेट पैटर्न। ए प्रोडक्ट ऑलवेज हैज़ ए सेट पैटर्न। सेट पैटर्न जो हम लोगों ने अभी देखा, ये वाला इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, को पता है सेट पैटर्न के थ्रू ही प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट कभी आगे भी नहीं जाएगा पीछे भी नहीं, इसी पैटर्न से उसको जाना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट के लिए तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट का क्या होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट विल बी वेरी लो। ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट को क्या होगा, ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट विल बी हाई, नॉट एट वेरी हाई बट इट विल बी हाई। मैच्योरिटी स्टेज में प्रॉफिट क्या होगा, मैच्योरिटी स्टेज में प्रॉफिट कंपैरेटिवली लो होता है, comparatively low. Then in the decline stage profit is low. Okay, if I talk about this research and development expenditure, ये research and development मुझे कब तक करना है, till which point I should continue the research and development expenditure later time product. I'm talking about the phase. So research and development expenses जो है, research and development expenses हमको हमेशा ग्रोथ स्टेज तक करना ही करना है अगर मार्केट में टिके रहना। क्यों नहीं डिक्लाइन स्टेज में, डिक्लाइन स्टेज में वी विल नॉट थिंक अबाउट इंट्रोड्यूसिंग और इन्वेस्टिंग मोर मनी इनटू द प्रोडक्ट, रेदर वी विल थिंक अबाउट हाउ टू रिकवर आवर कॉस्ट। सो ग्रोथ स्टेज के हम लोग आगे नहीं जाएंगे, ग्रोथ स्टेज तक ही हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, किड स्टेज में कॉस्ट कंट्रोल हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल हम लोग ज़्यादा करेंगे डिक्लाइन स्टेज पे। क्यों, क्योंकि हमको टिके रहना है मार्केट में। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कभी कभी नेट में आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये सिचुएशन दे देते हैं, देके बोलते हैं कि बताओ कंपटीशन स्टेज, अगर तो कंपटीशन एक फैक्टर है तो कंपटीशन फैक्टर मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो है ग्रोथ स्टेज में क्या करना चाहिए। सो दैट वी शुड know this. So very simple concept, and I will try to upload some more videos on the practical sum on this concept. Thank you for your patience listening.